Good morning, guys. Welcome to Talent Blazer, India's latest tech platform that is there to help you at every stage of your career. Now, if you have been here, you know me. My name is Gaurav, and I'm your teacher and mentor in this journey. And we are continuing with Paper 2 Commerce, and we have already covered 8 unit prior to this video. And in today's class, we'll start with Unit 9 Legal Aspects of Business. Okay, right. So, we all have studied law in our graduation, right? So we'll start what we have studied till now, right? So and what is included in your UGC examination syllabus as well. Okay, so यूनिट 9 की अगर मैं बात करूं तो जैसे टाइटल है लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, राइट? तो बिजनेस से हमें एक वर्ड याद आता है बिजनेस लॉ, as you all know, right? Business law we all have studied in our graduation, and it started with Indian Contract Act, and it still does, right? The syllabus though have changed, but Indian Contract Act is still there. Okay, which makes this Contract Act very special, right? Because in your examination you can expect many questions based on this. Now if I talk about what are the other things which is included in your syllabus: Sales of Good Act, okay, then there is Companies Act, Factory Act, right? So all of these majorly form your part of legal aspects of business, right? So if I have to be pretty honest, like law in its own, if we want to study law, there is no, you know, shortage of depth in law, right? Why? Because Indian contract for graduation is different compared to what an CA aspirant will study, right? तो बहुत डिफरेंट होता है सिलेबस. अगर आप एज इन देर इज नॉट डे एंड नाइट डिफरेंस, ऐसा नहीं है, बट डिफरेंस होता है. एंड लीगैलिटी में अगर आपको जाना है तो आपको पता लगेगा कि देर आर सो मेनी थिंग्स टू स्टडी, जो अगर मैं ग्रेजुएशन लेवल के हिसाब से बोलूँ तो आपको इतना इन डेप्थ नहीं जाना होता सिलेबस में, राइट? बट वहीं पे अगर इफ यू हैव कवर्ड सीए, इफ यू वर एन सीए एस्पिरेंट, इफ यू in your mid journey of CA preparation, you left it, you must have covered Indian Contract Act, you must have read it in depth, right? The syllabus is very different in that aspect, if I'm just talking about the depthness, right? Now the natural question arises कि क्या एग्जैक्टली हमें सीए लेवल का पढ़ना है फॉर योर एग्जामिनेशन? नो, आपके सीए लेवल का आपके क्वेश्चंस नहीं आएंगे. सो फॉर यू द बेस्ट ऑप्शन टू स्टडी इज फ्रॉम योर ग्रेजुएशन बुक्स. तो वहीं का लेवल आता है, उसमें से यू नीड टू पिक आउट विच क्वेश्चंस आर इम्पोर्टेंट, विच क्वेश्चंस आर नॉट इम्पोर्टेंट, एंड वेयर and how will you know that is through PYQs, previous year questions, right? So these will help you and will guide you and will actually give you the direction कि मेरे को कितना एक्चुअली प्रिपेयर करना है, कितना लेवल या कितने एक्सटेंशन तक जाना है. एज आई सेड कि सिलेबस काफ़ी वेरी करता है ग्रेजुएशन लेवल और सीए एस्पिरेंट के लिए. अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यहाँ पे भी से इधर भी है उधर भी है, बट वहां पे हम फोकस इस पे कर रहे हैं. यहाँ पे डेप्थनेस की बात आ रही है कि काफी डिफरेंस आ जाता है. सो इफ यू आर एन स्मार्ट एस्पिरेंट, यू नीड टू नो योर चैलेंजेस एंड योर बैटल्स. यू डोंट हैव टू स्टडी फॉर ए सीए एस्पिरेंट, ठीक है? तो वहां पे डिफरेंस है, राइट? तो आज की वीडियो में विल स्टार्ट विद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एंड द एक्ट इन इटसेल्फ इज अ वेरी बिग थिंग, राइट? बात करते हैं कब आया था. कॉलोनियल पीरियड के बाद में आया था इन 1872. It was established, it was enacted during British rule, and it is based on English contract law principle, right? अगर थोड़ा सा भी अगर आपको याद होगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बहुत सारी केस स्टडीज जो थी वो एग्जैक्टली फ्रॉम ब्रिटिश एक्ट ही कॉपी कर रखी थी. तो हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दो इंडियन कंटेक्स्ट में था, बट majority of it was based upon English contract law principles, right? And second, there hasn't been much of amendment. काफी एक्ट्स होते हैं विद टाइम अमेंडमेंट कर दी जाती है, कुछ नए एडिशंस लेके आ जाते हैं, कुछ चेंजेस लेके आते हैं. बट अगर मैं वैसे बताऊं, देयर
has been very few amendments throughout its journey from 1872 to till now, right? बहुत ही कम amendments हुई है। और क्या था इसका एम, क्या था, वाई इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट केम इन प्लेस? एक यूनिफॉर्म लीगल फ्रेमवर्क बनाना था फॉर कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशंस इन इंडिया, ठीक है? जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशंस हैं इंडिया में, उसके लिए एक यूनिफॉर्म लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए, वो इसका पॉइंट था। अभी एप्लीकेबल कहाँ है? दिस एक्ट अप्लाइज टू ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स इन इंडिया। पहले नहीं होता था, बट आफ्टर 2019, एज यू नो, वंस आर्टिकल 370 वाज रिवोक्ड, राइट, सिंस देन इट इज एप्लीकेबल इन JNK एज वेल, राइट? तो पहले नहीं होता था, बट आफ्टरवर्ड्स होने लगा, तो पूरे थ्रू आउट इंडिया में एप्लीकेबल है, राइट? अब इसका हम स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं? सी, यू नो, हमेशा यू नीड टू नो द बेसिक्स। तो बिना बेसिक समझे यू कैन नॉट प्रोसीड हेड, एंड आई हैव सीन मेजॉरिटी ऑफ पीपल स्टिल बी कंफ्यूज्ड अबाउट द डेफिनेशंस, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, यू नो, दे हैव जस्ट वेग आंसर्स ऑफ व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? अब सी, पहला क्या है हमारा, मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट से पहले क्या आता है उसके बारे में बात करता हूँ। सी, 2 पर्सन हैं, हम 2 पर्सन का एग्जांपल लेते हैं, 2 लोग हैं, 2 लोग इन्वॉल्व हैं, वो क्या कर रहे हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। मतलब कि पहले क्या करेंगे, एक इंसान कुछ में उसमें ऑफर करेगा, दूसरा इंसान उस ऑफर को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, और उसके बदले उसे कुछ वापस रिटर्न में देगा, ठीक है? तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की बात होती है कि एक इंसान कुछ ऑफर करेगा, सामने वाला उसे एक्सेप्ट करेगा, और उसके बदले उस ऑफर में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन ऐसी होंगी कि सामने वाले को उसके बदले में कुछ मिल रहा होगा, ठीक है? अब यही होता है, हम सीधा सिंपल तरीके से बोलते हैं तो एक कुछ प्रॉमिस होते हैं, सेट ऑफ प्रॉमिस या प्रोमिसेस which makes an agreement, which makes an agreement। अब मैं एग्रीमेंट वर्ड पे क्यों कह रहा हूँ फोकस करने के लिए, बिकॉज आगे एग्रीमेंट वर्ड ज़्यादा यूज होगा। अब सेट ऑफ प्रॉमिस, ऑफर्स विच मेक एन एग्रीमेंट, काफ़ी उसमें डिफरेंस नहीं है, ठीक है? एक आदमी किसी को वादा करता है, अब इसका एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लेट सपोज मैं कुछ 3 बच्चे देखता हूँ अपनी क्लास में, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, वेरी स्मार्ट, एंड आई थिंक दे शुड टीच हेड फर्दर, ठीक है? तो अब उनको पढ़ाना है, मतलब एज ए यू नो कॉलेज में प्रोफेसर बनना है, सो व्हाट दे नीड इज बेसिकली UGC नेट कोचिंग। सो आई यू नो बेसिकली go to them and offer them my service is to teach them, ठीक है? अब मेरा ऑफर ये है कि मैं उनको पढ़ाऊंगा UGC नेट के लिए, और वो सामने से उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है? ऑफर में काफ़ी सारी टर्म्स एंड कंडीशन होती है। अब ऑफर में क्या है, मैं कुछ उनको प्रॉमिस कर रहा हूँ। प्रॉमिस क्या कर रहा हूँ कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, और कब पढ़ाऊंगा, डिटेलिंग एवरीथिंग पढ़ा के। अब प्रॉमिस और प्रोमिसेस भी हो सकते हैं, पढ़ाने के अलावा भी मैं और सारे प्रॉमिस कर सकता हूँ कि आपके टेस्ट लूंगा, यू नो, आपको मेक श्योर कराऊंगा आप क्लियर कर लो, यू नो, फाइनली आप UGC नेट या JRF लेके आ जाओ। तो ये सारी चीजें एग्रीमेंट बनाती है, प्रॉमिस करना होता है और सामने वाला उनको एक्सेप्ट करता है, राइट? तो इससे हम शुरू करते हैं ऑफर एंड एक्सेप्टेंस से, जिसमें एक इंसान सामने वाले को ऑफर दे रहा है। जैसे मैं इसी केस में एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कि मैंने सामने वाले को ऑफर क्या दिया कि मैं आपको UGC नेट की कोचिंग की सर्विस दे रहा हूँ, और यू नो इसके लिए इतना प्राइस चार्ज करूंगा, इतने दिन तक चलेगा, इतने महीने तक चलेगा, इस दिन क्लास लूंगा, इस मोड से क्लास लूंगा, इतने घंटे क्लास लूंगा। तो ये मेरा ऑफर है। क्या? एक क्लियर डेफिनेट प्रपोजल एक्सप्रेसिंग द विलिंगनेस टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। मैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना चाहता हूँ, मैंने ऑफर दिया, सामने वाले ने उसे एक्सेप्ट करा, मतलब अनकंडीशनल एंड एब्सोल्यूट एग्रीमेंट टू ऑल द टर्म्स ऑफ ऑफर। सारी की सारी टर्म्स ऑफ ऑफर की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि मैं आपको किस दिन पढ़ाऊंगा, किस टाइम पढ़ाऊंगा, ये सारा मेरा ऑफर है। मैं कितने पैसे लूंगा, वो भी मेरा ऑफर है। एक्सेप्टेंस में सामने वाला जो पर्सन है उसे एक्सेप्ट करेगा कि हाँ, ही हैज नो प्रॉब्लम, जो भी आपने टर्म्स एंड कंडीशन बताई हैं सारी चीजों पे वो अग्री करता है, ठीक है? अब एक एक करके पढ़ते हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या चीजें होती है। एन ऑफर इज अ प्रपोजल, आप प्रपोजल कर रहे हो, फोर्स नहीं कर रहे हो, पहली बात किसी को, मेड बाय वन पार्टी टू अनदर। मैं यहाँ पे अपने स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ कि यू नो, दो यू आर स्टूडेंट्स इन माई कॉलेज, आई वॉन्ट यू टू study with me for your UGC NET examination to another
इंडिकेटिंग अ विलिंगनेस टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, तो हम एक कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं. इट रिप्रेजेंट द इनिशियल स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. अगर कोई इंसान ऑफर करेगा ही नहीं, कोई इंसान एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कैसे? तो इसलिए ऑफर जो है एक इनिशियल स्टेप है हमारा फॉर्मेशन में कॉन्ट्रैक्ट की. ठीक है, अब बात करते हैं क्या क्या की एलिमेंट्स होते हैं एक ऑफर के. सबसे पहले दो पार्टीज होती हैं, एक होता है ऑफरर, एक होता है ऑफरी. ठीक है, ऑफरर जो हमारे एग्जाम्पल में मैं हो गया, राइट. आई विल बी द ऑफरर एंड माई स्टूडेंट्स विल बी द ऑफरी, द वन हु रिसीव्स दैट ऑफर. ठीक है, अब द ऑफरर मस्ट इंटेंड टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप. अब मेरे यहाँ पे इंटेंशन क्या होना चाहिए? एक लीगल रिलेशनशिप का होना चाहिए, ना कि कोई सोशल रिलेशनशिप, सोशल डोमेस्टिक रिलेशनशिप नहीं, एक लीगल रिलेशनशिप बनाना. Invitations to treat which are not intended to create legal obligations are not considered offers. ठीक है, इसी का दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ. लेट सपोज आई डोंट गो टू माई स्टूडेंट्स एंड ऑफर देम फॉर कोचिंग एंड स्टाफ. मैं उनसे बस ऐसे ही बोल दूँ दे आर माई स्टूडेंट्स, दे आर इन ग्रेजुएशन. तो मैं उनको क्या बोलूँगा कि यू नो वॉट, इफ यू स्कोर 70+ इन योर नो नाउ द एग्जामिनेशन इज फॉर 90 मार्क्स. तो अगर मैं उनको बोलता हूँ लेट सपोज इफ यू स्कोर 85+ राइट इन योर फाइनल एग्जामिनेशन, आई विल गिव यू अ ट्रीट. ठीक है, ट्रीट दूंगा, आई विल गिव यू अ ट्रीट. सो यहाँ पे क्या है, मैं उनको इनवाइट कर रहा हूँ, मैं उनको ये बोल रहा हूँ कि आप अगर इतना स्कोर कर लोगे, इतने अच्छे मार्क्स ले आओगे, तो मैं आपको ट्रीट दे दूंगा. अब जरूरी यहाँ पे कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं बन गई, मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट में नहीं एंटर कर रहा हूँ उनके साथ, मैंने ऐसे बस बोल दिया. सी इट्स वेग, राइट. अब वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं उनको ट्रीट दूं या ना दूं. और उसका पहला कंडीशन क्या है, उनको इतना स्कोर करना पड़ेगा. स्कोर कर दिया तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है मैं उन्हें ट्रीट दूं या ना दूं, राइट. अगर मैं कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट बनाता, वहां पे इफ दे डिड डू परफॉर्म देयर पार्ट लाइक एज इन स्कोरिंग 85+, तब जाके मुझे तो फिर वो परफॉर्मेंस करनी पड़ती है, मतलब उन्हें ट्रीट देनी पड़ती है. ठीक है, फिर उसके बाद वो डिफाइन होना चाहिए. द टर्म्स ऑफ ऑफर मस्ट बी क्लियर एंड स्पेसिफिक. वेग और एम्बिगियस ऑफर्स मे नॉट बी लीगली बाइंडिंग. अब यही एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स वाला, राइट. अब बच्चों को क्या लग रहा है कि सर विल टीच अस पेपर 2, राइट. बट इन माई माइंड आई थॉट दैट आई विल बी गिविंग देम कोचिंग फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2. ठीक है, अब मैंने तो सिर्फ कोचिंग की बात करी, मैंने ये तो बोला नहीं कि पेपर 1 की दे रहा हूँ, पेपर 2 की दे रहा हूँ. बच्चों को लगा पेपर 2 की देंगे सर, पेपर 1 पेपर 2 की नहीं देंगे, दोनों की नहीं देंगे. तो वहां पे क्या कंफ्यूजन, एक एम्बिग्यूटी क्रिएट होगी. ठीक है, अब इसकी वजह से अब लीगल बाइंडिंग नहीं. लेट सपोज अगर बच्चे कल जाके आते हैं क्लास में और मैं पेपर 1 पढ़ाना स्टार्ट कर देता हूँ, और वो बोलते हैं कि नहीं नहीं सर आप तो पेपर 2 पढ़ाओ, बट मेरे दिमाग में इट वॉज वन कि पेपर 1 पेपर 2 दोनों पढ़ाना है. अब यहाँ पे कंफ्यूजन की वजह से लीगली बाइंडिंग नहीं होगा. तो वेग और एम्बिगियस ऑफर जो है लीगली बाइंडिंग नहीं होते. ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं कम्युनिकेशन. द ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी. कहने का क्या मतलब है कि जो साइलेंस होता है मोस्ट केसेस में एक एक्सेप्टेंस को कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता. मतलब अगर आप साइलेंट हो, मैं बच्चों के पास गया और आई ऑफर देम माई कोचिंग सर्विसेज, तो अगर वो वहाँ पे चुप है तो उसका ये मतलब नहीं कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और मैं नेक्स्ट वीक उनको एक्सपेक्ट करूंगा कि वो मेरे साथ पढ़ेंगे. ठीक है, अब कंटेंट जो हमारा कन्वे करना कि आपने एक्सेप्ट करा है रिजेक्ट करा है ऑफर, तो दो कम्युनिकेशन के टाइप होते हैं. वर्बल होता है, रिटर्न होता है जो हमें पता है, और एक इम्प्लाइड होता है. वर्बल है कि मैं वर्बली बोल रहा हूँ, रिटर्न है कि वहां पे एक रिटर्न एग्रीमेंट हो रहा है, रिटर्न ऑफर हो रहा है, मैं उनको बता रहा हूँ ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है. और फिर लास्टली हम बात करते हैं इम्प्लाइड. इम्प्लाइड क्या होता है? सी लेट सपोज वहां पे 3 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, एंड आई एम ओनली इंटरैक्टिंग लाइक एंड आई नो दैट माई ऑफर इज फॉर ऑल, बट वहां पे जो मेरी बात हो रही है दैट इज विद 1 स्टूडेंट. तीनों एक साथ तो नहीं बोलेंगे, एक से बात हो रही है, एक ही बोल रहा है. सो आई एम अज्यूमिंग बिकॉज यू आर देयर एंड यू ऑल आर इंटरेस्टेड, जो मैं टाइम्स बता रहा हूँ, जो मैं ऑफर दे रहा हूँ, इट इज फॉर ऑल. ठीक है, इफ आई एम सेइंग कि दैट आई विल चार्ज दिस मच फीस, वो सिर्फ एक बच्चे से उतनी फीस नहीं लूंगा, मैं सबसे उतनी ही लूंगा, राइट. तो तीनों के लिए वो इम्प्लाइड हो जाता है बिकॉज यू आर देयर, यू आर लिसनिंग एंड यू आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन
giving this examination and you three were there but I was communicating to only one. मैं सिर्फ एक से बात कर रहा था, तो वहां पे इम्प्लाइड है वो तीनों ही इंटरेस्टेड थे, कोचिंग लेना चाहते थे। उसमें उनके कंडक्ट, जो इम्प्लाइड होता है वो आपके कंडक्ट से पता लगता है दैट यू आर इन और आउट। ठीक है, तो आपका कंडक्ट बता देता है। लेट सपोज वहां पे तीनों स्टूडेंट्स दे आर लिसनिंग टू मी वेरी केयरफुली एंड आई हैव गिवन देम ऑफर्स एवरीथिंग एंड दे डोंट डिनाई, सो व्हाट विल आई अज्यूम दैट दे ऑल आर इन। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सेप्टेंस की। अब एक्सेप्टेंस जो है वो बिल्कुल अनकंडीशनल होना चाहिए, अनक्वालिफाइड एग्रीमेंट होना है, जो सारी की सारी टर्म्स जो है ऑफर की माननी पड़ेंगी। मतलब अगर मैं उनको बोलता हूँ कि मैं सिर्फ संडे क्लास लूंगा तो वो भी एक्सेप्टेबल होना चाहिए, 2 से 4 बजे लूंगा तो वो भी एक्सेप्टेबल होना चाहिए, ऑनलाइन लूंगा तो वो भी एक्सेप्टेबल होना चाहिए। मतलब जो जो चीजें हैं वो सब की सब आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, किसी पे भी आप मना नहीं कर सकते। ठीक है, इट फाइनलाइज द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्रिएट्स अ लीगल बाइंडिंग रिलेशनशिप। ऑफर क्या था, इनिशियल स्टेप था। सो रिमेंबर दिस इज हाउ दे फ्रेम क्वेश्चंस। अगर आप थोड़ा भी ध्यान दोगे तो यू कैन फिगर इट आउट। और ये क्या करता है, एक लीगली बाइंडिंग रिलेशनशिप बनाता है और इसको एंड करता है। ठीक है, फाइनलाइज करता है। अब उसके बाद करते हैं बात एग्जाम्पल ऑफ एक्सेप्टेंस, वर्बल एक्सेप्टेंस। If the offer is made verbally, acceptance can also be verbal. ठीक है, for agreeing to purchase goods during a face to face conversation, जैसे आप जाते हो दुकान पे सामान लेने, ठीक है, वहां पे कोई रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट तो होता नहीं है। आपकी वहां पे ऑफर हुआ, वहां पे आपने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, आप गए दुकान पे, यू वेंट देयर टू बाय समथिंग एल्स। लेट सपोज आप स्टेशनरी शॉप पे गए, आपने पेन लेना था, आपने पेन ले लिया। उसके बाद बिकॉज उन्होंने बोला दैट यू माइट बी नीडिंग अ रजिस्टर एज वेल, तो उन्होंने रजिस्टर के लिए बोला, फिर आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो वहां पे आपने एग्री कर लिया है, तो वो भी एक्सेप्टेंस ही है, वर्बल एक्सेप्टेंस है। अब बात करते हैं रिटन एक्सेप्टेंस की। फॉर्मल ऑफर्स में रिक्वायर रिटन एक्सेप्टेंस साइन बाय द ऑफरी टू इंश्योर क्लैरिटी एंड एविडेंस ऑफ द एग्रीमेंट। ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है वर्बल एक्सेप्टेंस में कि प्रूव करना, लेजिटिमेट ऑफर था और उसको इन्होंने एक्सेप्ट करा, ये प्रॉपर चीज है, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट है। बट रिटर्न जो हमारे होते हैं, रिटर्न एक्सेप्टेंस, उसमें सब चीजें डिटेल मेंशन होती है, तो उसको प्रूव करना इन कोर्ट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। ठीक है, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस थ्रू कंडक्ट, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये कैसे होता है, आपके कंडक्ट से एक्सेप्टेंस होता है। इफ द ऑफरी एक्ट्स इन अ वे दैट क्लियरली इंडिकेट्स एक्सेप्टेंस, देन एक्सेप्टेंस इज इम्प्लाइड। जब वहां पे आप तीनों स्टूडेंट्स है और जब मैं आपसे आगे बात कर रहा था, then it is given that you're probably don't you agree with, you want to come in a group। ठीक है, एक तरीके से ग्रुप में आ रहे हो, आप तीनों के तीनों एक साथ आओगे, तो जो भी मैं ऑफर टर्म्स एंड कंडीशन बता रहा था तीनों के लिए एप्लीकेबल है, राइट, चाहे बात मेरी किसी एक स्टूडेंट से ही हो। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ऑफर एंड एक्सेप्टेंस से रिलेटेड। सबसे पहले रिवोकेशन ऑफ ऑफर, मैं रिवोक भी कर सकता हूँ ऑफर को। मतलब रिवोक का मतलब क्या है, उसको रोक सकता हूँ, रोकना, कैंसिल करना बिफोर फुलफिलमेंट। अब ये कैसे है, एट एनी टाइम, मतलब ऑफर जो है, जैसे मैं था, बिफोर एक्सेप्टेंस से पहले मैं उनको रोक सकता हूँ, मतलब उस ऑफर को। सी, अब क्या है, जैसे मैंने स्टूडेंट से बात करी, तो स्टूडेंट्स ऑन द पॉइंट तो नहीं मान जाएंगे कोचिंग के लिए। व्हाट दे विल डू इज बेसिकली गो एंड टॉक विद देयर पेरेंट्स कि सर ने बोला है ऐसे कोचिंग के लिए, एंड दिस मच इज द ट्यूशन फीस ही इज आस्किंग, इस टाइम पे होगी, इतने दिन होगी, इतने महीने कराएंगे, एंड ही इज सेइंग ही इज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट मेकिंग ऑल ऑफ अस क्लियर दिस एग्जामिनेशन। ठीक है, अब वो बात करने जाएंगे। अब लेट सपोज ये सिचुएशन हुआ है, पूरा सिनेरियो ऑफ फ्राइडे को, ओके, सैटरडे संडे ऑफ, आई एम एक्सपेक्टिंग देयर आंसर ऑन मंडे दैट दे विल रिवर्ट बैक टू मी। ठीक है, फ्राइडे को मैंने इनको सारी टर्म्स एंड कंडीशन बोल दी थी कि मैं क्लास लूंगा संडे को 2 से 4 लूंगा एंड ऑनलाइन लूंगा। ठीक है, दीज वर माई टर्म्स एंड कंडीशंस। I realized on Saturday or Sunday that probably I won't be having that much time कि मैं इनको पढ़ा पाऊँ। Okay, I realized before Monday, जब उनको मैंने डेडलाइन दे रखी थी acceptance, that maybe I won't be able to take classes or coaching। तो अब क्या करते हैं, मैं इनको मना कर देता हूँ, मैं इनको इन्फॉर्म कर देता हूँ बिफोर एक्सेप्टेंस दैट आई वोंट बी एबल टू टेक अप योर
coaching classes. I have something more crucial or important coming up and that is why I won't be able to commit myself. ठीक है, तो रिवोक करना है और उसको कम्युनिकेट भी करना है ऑफरी को. तो मैंने रिवोक कर दिया सैटरडे संडे को, मंडे से पहले, एक्सेप्टेंस से पहले. अब ऑफर एक और तरीके से कैंसिल हो सकता है, दैट इज लैप्स ऑफ टाइम. ठीक है, अब वही एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं, बस ये वाला पार्ट छोड़ देते हैं सैटरडे संडे वाला, बाकी सारी चीजें सेम है कंडीशन जो है. फ्राइडे को मैंने बोला था मंडे तक बता देना, मंडे तक दे डिडंट इन्फॉर्म मी, उन्होंने कुछ नहीं बोला. ट्यूसडे को अनदर ग्रुप अप्रोच मी, उन्होंने बोला सर आप दूसरे बच्चों को पढ़ा रहे हो, हमें ही पढ़ा दो. राइट, तो अब मैंने ट्यूसडे को जो अदर ग्रुप, मैं इसको बी ले लेता हूँ एक ग्रुप, मंडे ए ग्रुप का डेडलाइन था, बी ग्रुप मेरे पास आया, अप्रोच करा, उन्होंने बोला कि सर आप हमें पढ़ा दो, आप दूसरे ग्रुप को तो पढ़ाने वाले थे, एंड दिस इज आफ्टर मंडे. ठीक है, ट्यूसडे को वो बोल रहा है, एंड आई कमिटेड एंड आई सेड ओके डन, फिर हम संडे से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, मैंने ऐसे बोल दिया. अब आफ्टर दे अप्रोच्ड, ए ग्रुप केम टू मी एंड से सर हम रेडी हैं, हम क्लासेस ले लेंगे संडे से, घर पे बात हो गई. नाउ I can't teach both the groups, so I will prioritize only this group because their offer जो उनका था वो उसका लैप्स हो गया. ठीक है, टाइम जो है वो निकल गया, मंडे तक उन्हें जवाब देना था, बट उन्होंने जवाब दिया ट्यूसडे को, और उससे पहले मुझे किसी और ग्रुप ने दे दिया, और मैं उनके साथ अब क्या है एक ऑफर में बन चुका हूँ और मेरा वहीं पे टाइम चला जाएगा. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं लैप्स ऑफ टाइम. राइट, अब बात करते हैं तीसरे, डेथ और इनकैपेसिटी. सी, अगर कोई पार्टी मर जाती है तो वो ऑफर जो है, ऑफर एक्सेप्ट करने से पहले तो वो यूजुअली इनवैलिड बन जाता है या फिर कोई इनकैपेसिटेटेड हो जाता है. ठीक है, इनकैपेसिट की बात करने का मतलब क्या है, लेट्स अज्यूम दैट वन ऑफ द स्टूडेंट्स मेट विद एन एक्सीडेंट. अब वो एक्सेप्टेंस से पहले उसका एक्सीडेंट हो गया, वो पढ़ेगा कैसे? he knows that he won't be able to study for a while, he needs to recover. राइट, तो अब इनवैलिड हो गया ऑफर. राइट, तो ये किसी और के साथ भी होता है तो ऑफर इनवैलिड हो सकता है, या मर जाते हैं तो भी हो जाएगा, इनकैपेसिटेट हो जाता है. अब द ऑफर यूजुअली बिकम्स इनवैलिड. वाई? अब इसमें यूजुअली वर्ड क्यों है? देखो काफी बार क्या होता है, इफ आई टॉक अबाउट बिजनेस, तो बिजनेस में फादर एंड सन का डुओ को एग्जाम्पल लेते हैं, फादर एंड सन. ठीक है, अब फादर इज द वन हु मेड प्रोमिसेस, हु मेड एन ऑफर, सामने वाले ने एक्सेप्ट करना था. Before he could give his acceptance, the father met with an accident or something happened. ठीक है, अब he didn't inform that person कि यार ऐसा हो गया है, he won't be able to actually fulfill the offer. अब ये अपनी एक्सेप्टेंस सन को दे देते हैं और एक्चुअली फादर को ही दे देते हैं कि ऐसा ऐसा है, हम कर रहे हैं. तो अब वो सन जो है अपने फादर के बिहाफ पे उस चीज को, प्रॉमिस को फुलफिल करेगा. ठीक है, काफी केसेस में ये होता है, बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि यहाँ से उन्होंने एक्सेप्टेंस जब एक्सेप्ट करी थी तो वेदर दे न्यू और नॉट. ठीक है, एक्सीडेंट के बारे में उन्हें पता था या नहीं पता था. ठीक है, तो यूजुअली वो इनवैलिड हो जाता है. राइट, अब बात करते हैं एग्रीमेंट की. अग्रीमेंट मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि क्या होता है. पहले किस सेक्शन में आता है? सेक्शन 2E. Every promise and every set of promise forming the consideration for each other. अब consideration क्या होता है? Consideration is nothing but something in return. मतलब एक इंसान दूसरे इंसान को कुछ बदले में देगा तभी जाके कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल होगा. ठीक है, एक इंसान दूसरे इंसान को कुछ देगा तभी जाके कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल होगा. राइट, अग्रीमेंट क्या है? प्रॉमिस है और सेट ऑफ प्रोमिसेस है. यहाँ पे कुछ लॉ से रिलेटेड कुछ नहीं बोला गया है, अभी मैं बताऊंगा आगे कहाँ पे क्या है और क्या डिफरेंस है. एन एग्रीमेंट में दो या दो से ज्यादा पार्टीज होती हैं, वो एक दूसरे से प्रॉमिस करती हैं. द प्रोमिसेस मस्ट बी रेसिप्रोकल, मीनिंग ईच प्रोमिस इज द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर. ट्यूशन वाला एग्जाम्पल लेते हैं, मैं ट्यूशन पढ़ाऊंगा और बच्चे मुझे बदले में फीस देंगे. ठीक है, तो ये क्या है? एक एग्रीमेंट है, टर्म्स एंड ऑफर अभी हमने बता दी. राइट, अब बात करते हैं व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट. सेक्शन 2H ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइन अ कॉन्ट्रैक्ट एज एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ. डेफिनेशन से अच्छा है ना, मैं इसको आपको सिंप्लीफाई कर देता हूँ. सी, कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट
प्लस इन्फोर्सेबल बाय लॉ, EBL, सिंपल। ठीक है, मैं इसको सिंपल और इजी तरीका इसलिए बता रहा हूँ, हमेशा के लिए याद हो जाएगा दैट एग्रीमेंट के साथ अगर वो इन्फोर्सेबल हो जाता है बाय लॉ, हमेशा आपका कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा। ओके, कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट एग्रीमेंट विच कैन बी एनफोर्स बाय लॉ। ठीक है, हमारे जो एग्रीमेंट हुए मेरे और स्टूडेंट्स के बीच में, अगर मैं उनको लॉ से बाय लॉ से इन्फोर्स करा दूं तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ओके, अब इसमें क्वेश्चन आता है जो मैं हमेशा पूछता हूँ, विच इज बिगर, कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट? मतलब ज्यादा डेप्थ किसकी है, कॉन्ट्रैक्ट की है एग्रीमेंट की? तो मेजोरिटी ऑफ टाइम स्टूडेंट्स से सर कॉन्ट्रैक्ट हैज अ वाइडर रीच कंपेयर टू एग्रीमेंट। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है जो आप नहीं समझ पा रहे। अगर आपने समझ लिया तो वेल एंड गुड। सी, कॉन्ट्रैक्ट में एक इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। दैट मीन्स एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बट इन एवरी एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब एक एग्रीमेंट है जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, बट वो एग्रीमेंट तो है। बट एक कॉन्ट्रैक्ट जो एग्रीमेंट है वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ ही होगा, मतलब एग्रीमेंट की जो है वाइडर रीच है कंपेयर टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये एक स्निपेट है, याद हो गया हूँ आई होप, कि कॉन्ट्रैक्ट छोटा है रीच में, एग्रीमेंट ज्यादा बड़ा है। राइट, अब इसके की एलिमेंट्स की बात करते हैं। फॉर एन एग्रीमेंट टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट इट मस्ट फुलफिल सर्टेन लीगल रिक्वायरमेंट्स। बिना लीगल रिक्वायरमेंट्स के वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। These requirement includes the presence of lawful consideration, the capacity of parties, free consent, a lawful object, certainty and possibility of performance। अब मैं एक एक करके बताता हूँ। सी, अभी मैंने कंसिडरेशन आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि कंसिडरेशन क्या है, समथिंग इन रिटर्न। अब वो लॉफुल होनी चाहिए। ठीक है, लॉफुल कंसिडरेशन का मतलब क्या है, मैं अगर जैसे अपने एग्जांपल में बता रहा हूँ, मैं अपनी नॉलेज दे रहा हूँ, मैं अपनी सर्विस में एक्सपर्टीज दे रहा हूँ, उसके बदले पैसे ले रहा हूँ, विच इज प्रेटी मच नॉर्मल, लॉफुल है। बट अगर मैं कंसिडरेशन में क्या बोलता हूँ, अगर स्टूडेंट्स को बोल दूँ कि तुम अपनी ज़मीन बेच दो और ज़मीन मेरे अब जो तुम्हारे पेरेंट्स की है उनसे छीन के ले आओ, है ना, उनसे ज़बरदस्ती उनको सेल करवा दो, उनसे सिग्नेचर ले लो पेपर की ज़मीन पे, और वो जो कागजात पे उन पे ज़मीन पे मेरे नाम करा दो, तो वो लॉफुल कंसिडरेशन नहीं, आप यहाँ पे फोर्सफुली करा रहे हो। ठीक है, लॉफुल कंसिडरेशन का सिंपल से सादा सा मतलब है जो लॉ के नियम में आप दे सकते हो वापस। अगर लेट सपोज मैं पढ़ा रहा हूँ और सामने से उनको बोल दूँ कि आप कुछ मेरे लिए इलीगल काम कर दो, आप किसी के जाके मर्डर कर दो, आप किसी के घर जाके चोरी कर लो, तो दैट इज नॉट अ लॉफुल कंसिडरेशन। राइट, अब उसके बाद है कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज। सी, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज का क्या मतलब है, दैट नॉट एवरीवन इज एलिजिबल टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, अ माइनर इज नॉट एलिजिबल टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं अनसाउंड माइंड के लोग जो है हमारे, वो भी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकते। एंड देन देयर इज डिसक्वालिफाइड पर्सन। ठीक है, ये सारे लोग जो है कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते। माइनर बिकॉज वो एज नहीं है, सो generally law assumes that they are not in capacity to enter into a contract. Unsound mind का मतलब क्या है, that those people are either lunatic, idiotic। ठीक है, उनको समझ नहीं है, उनको समझ नहीं है, वो थोड़े lunatic हैं एंड दे आर नॉट इन देयर सेंसेस, तो वो एग्रीमेंट में एंटर नहीं कर सकते, उनको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते। उसके बाद क्या है, डिस्क्वालिफाइड पर्सन, मतलब इफ यू हैव अ क्रिमिनल केस गोइंग ऑन यू कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। फिर उसके बाद इफ यू आर एन एलियन एनिमी, इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा कि एलियन एनिमी कौन होता है। तो ये सारे जो है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, इसके अलावा ऑल द पीपल कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। राइट, अब इसके आगे हमारा क्या है, लॉफुल ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट है जिससे रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है वो लॉफुल होना चाहिए। ठीक है, आप किसी इलीगल एक्टिविटी को उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। लेट सपोज मैं किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट में इसलिए एंटर हो रहा हूँ कि आई एम गिविंग यू मनी टू प्रोबेबली किल समवन। ठीक है, वो हो ही नहीं सकता। लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, आप करना क्या चाहते हो वो लॉफुल होना चाहिए। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है
जो ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का आप करना क्या चाहते हो। यहाँ पे मैं किसी का मर्डर करवाना चाहता हूँ, वो तो कोई वो हुआ ही नहीं, कोई लॉफुल ऑब्जेक्ट तो हुआ नहीं, तो ये हमारा एक इलीगल ऑब्जेक्ट है, इसलिए वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। सर्टेनिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, लेट सपोज मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, यू नो मैं आपको कोचिंग दूंगा, उसके बदले में आप क्या करोगे, मार्स पे जाके फार्मिंग शुरू कर दोगे, मार्स पे जाके आप फार्मिंग शुरू कर दो। इज इट अ पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, कैन समवन एज ऑफ नाउ, एज ऑफ टुडे, कैन फार्म ऑन मार्स? वी ऑल नो दैट दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। जाना ही बहुत अभी ह्यूमनली पॉसिबल नहीं हुआ है, तो आप फार्मिंग कहाँ से कर दोगे, राइट। तो दीज आर योर यू नो वैलिड essential elements of a contract. If any of it is missing, it's a void contract. आगे पढ़ेंगे क्या है। तो इसमें एग्जाम्पल दे रखा है कॉन्ट्रैक्ट का, सेल कॉन्ट्रैक्ट में, जिसमें ए जो है अग्री करता है टू सेल हिज कार टू बी फॉर अ स्पेसिफिक अमाउंट, और बी जो है उसको पैसा दे देता है, और वो ए जो है उससे कार ले लेता है। तो कॉन्ट्रैक्ट जो है अगर सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स मेट होती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, ठीक है। One more important thing, as you know, your examination are on head, and without paper one you cannot get JRF. So if you want to enhance your preparation, if you want to give yourself an edge or boost over other aspirants, you have to make sure your paper one is thoroughly prepared. And if you are encountering any issue while preparing for paper one, and if you want help, so best way is, you can claim our ebooks of all 10 units by WhatsApping on this number 9873907600. WhatsApp on this number, you can claim ebook which have all the extensive knowledge, all the theoretical part, all the practical parts, all the practice problems, everything is there for free, right? So you can practice, you can learn from the scratch, from the basic, everything is mentioned there. All right, and that is all for free, so share with your friends as well. Right, so thank you all for joining and for rating us such tremendously on Google Play Store, right? So those who are not aware, we have a app on Google Play Store. The link for the same will be mentioned in the description below, named by Talent Blazer, right? And on app, what you can get is a mock test of UGC Net. So if you want to test yourself, give it a try. It is for free, right? And there are multiple other things of other ventures as well. If you want to give mock interviews, want to learn about interviews, so many things, all of them for free. And we have been rated specially 4.8. So thank you all for rating us so heavily, and like the video and subscribe the channel, and share this video with your friends as well. I'll join you in the next class.